Hello students, I hope you all are doing well, and in this video I am going to explain the lesson number 1 of class 10 social science economics part, that is the development. And I have already made the part 1 of this from this lesson, in which I have discussed the earlier parts, that is what is development and the development goals for different types of professions. So let's start this students from here. So what is national development students? So if national development is related to the nation, साफ पता चल रहा है. In the earlier video we had discussed about the individual development, for example development goal for the landless rural landless labor, फिर development goal for a girl child, and in this now it is a comprehensive term. So let's discuss this also students. As we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. So in the earlier video, as we already discussed, that a different person has the different types of a goals, so for them the national development is also a different. Discuss among yourself on what India should be for development, and it is an inference based question and in a class activity. Then what are the criteria for India should be development? So most likely you should find that different students in the class has given a different answer to the above questions. You are watching this video students, so you will have a different notions. For example, some students have a better facility for farming activities to the farmer, better incentive to the farmers on their food grains, so for better industrial opportunities, lots of industrial establishment for a better creating job opportunities. Different types of notions are different person, and some students have a notion that a better healthcare facility. Right now coronavirus is going on, so better health facility is a very essential part. So better access to the education facility also. So in fact you might have yourself thinks many different answer and not be sure of these. So you have think about different answer, different students have different answer. I have given just an overview that what would be the answer in your minds, different students. So it is a very important to keep in mind that different person could have a different as well as a conflict notion for a country's development. So it is very important to keep in mind. We have to keep in mind that a different person have a different notions. हर एक person की अलग अलग विचारधारा होती है development से related, and we have to respect it also. However, can all the ideas considered equally important? क्या ऐसा हो सकता है कि हर एक आइडिया को equally important consider किया जा सकता है? और इफ़ दीज आर कॉन्फ्लिक्ट, हाउ डज वन डिसाइड? और अगर उन आइडियाज़ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट विरोधाभास आता है तो उसको कौन डिसाइड करेगा और कैसे डिसाइड किया जाएगा? व्हाट शुड बी फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? क्या होगा जो फेयर बिल्कुल सही पाथ रास्ता जिससे सबका भलाई हो? वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और हमको ये भी देखना होगा कि क्या इस नेशनल डेवलपमेंट को करने के क्या और भी अच्छे तरीके हैं. वुड बी द आइडिया बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली स्मॉल ग्रुप्स? जो आइडिया है क्या उससे किल बड़े लोगों ग्रुप्स को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा या स्मॉल ग्रुप्स को? नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चंस. नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट द थिंकिंग अबाउट द अबव क्वेश्चंस. जो ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं यही कहीं ना कहीं नेशनल डेवलपमेंट के बारे में स्टूडेंट्स बताते हैं. ओके अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस पार्ट से पूछा जाता है. सो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स? कैसे डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट को कंपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स. सो लेट्स यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लेता हूँ. यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट थिंग्स, हाउ कैन सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर आर द अंडर डेवलपमेंट? कभी कभी पूछा गया होगा कि डिफरेंट डेवलपमेंट्स का मतलब तो डिफरेंट स्टूडेंट्स, लेकिन कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि कुछ कंट्रीज़ को डेवलप्ड कहा जाता है और कुछ कंट्रीज़ को अंडर डेवलप्ड कहा जाता है. डेवलप्ड मीन्स स्टूडेंट्स विकसित, एंड अनडेवलप्ड मीन्स विकासशील कह सकते हैं या फिर अविकसित भी कह सकते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज स्टूडेंट: डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड, और वी कैन से दैट पुअर नेशंस. ओके, सो डेवलप्ड स्टूडेंट्स those nations which are rich, they have a good per capita income, and that is the developing nations which are developing, मतलब they are between the poor nations and between the developed nations. तो उनको developing nations कहते हैं. For example, India is a developing nation, and the other one is the underdeveloped. We can say that they are below the underdevelopment. Sometimes in underdeveloped, developing and poor countries both are counted, students. So there are 3 types of categories which I have already tell you. When we compare different things, they could have a similarities as well as a differences. कभी कभी हम अगर different things compare करते हैं तो कभी कभी इसमें क्या होता है, similarities भी आती हैं, कभी कभी difference भी आती हैं. इसको आगे समझते हैं. Which aspect do we use to compare them? तो हम कौन सा पहलू इस्तेमाल करें जिससे कि समझ में आए? लेट अस लुक एट द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास itself. एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है स्टूडेंट इसमें. ये इसका पूरा मैं ओवरव्यू आप लोग को दे देता हूँ. फॉर एग्जांपल, विच स्टूडेंट इज़ द बेस्ट?
So for being a best student, there are different types of category. For example, that student should be a all-rounder in all the co-curricular activities like debate, like speech activity, like music, like sports. So we can say that if one student is good in music, it doesn't matter that he may be good in all the others activities. So for that वी कैन से दैट कैसे किया जाएगा, हाउ कैसे एनालाइज किया जाएगा, कैसे जनरल सेंस में एनालाइज किया जाएगा. तो कहीं ना कहीं एक रास्ता होना चाहिए ना कि ऐसा स्टूडेंट जो कि सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं इक्वली पार्टिसिपेट करता हो, इक्वली अपना परफॉर्मेंस देता हो, मेरिटोरियस भी हो, पढ़ने में भी अच्छा हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करता हो, तो उस स्टूडेंट को हम कह सकते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट्स बढ़िया हैं स्टूडेंट्स. सो that's a general view over question student. Usually we take one or more important characteristics of a person and compare them based on these characteristics. कभी कभी क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर करना होता है तो 2-3 हम पॉइंट्स लेते हैं और उसके बेसिस पर हम काउंट करते हैं कि वो उस पॉइंट पर कितना खरा उतरता है, फिर उस हिसाब से हम बताते हैं कि ये सही है, गलत है या फिर ठीक, मतलब इट मे बी नीड इम्प्रूवमेंट. ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंट अबाउट व्हाट आर डिफरेंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फ्रॉम द बेसिस ऑफ अ कंपैरिजन. कुछ अलग कंपैरिजन के बेसिस हो सकते थे, जैसे क्या, फ्रेंडलीनेस एंड द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी एंड मार्क्स सिक्योर्ड. हम क्या ले सकते हैं, कुछ पहलू ले सकते हैं. अगर हम अच्छे स्टूडेंट की ले बात करें तो कौन कौन से पहलू यहाँ पे बताए गए, फ्रेंडलीनेस, दोस्ती का स्वभाव, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की इच्छा, या फिर क्रिएटिविटी, अच्छे काम करना, और मार्क्स सिक्योर्ड. ये सब चीज़ें काउंट करके फिर जो इसमें अच्छा करता है उसको हम अच्छा स्टूडेंट कह सकते हैं. ये एक एग्जांपल दिया गया स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए. लेकिन अब जो मेन पॉइंट आ रहा है यहाँ पर देखिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी से बनते हैं. सो दिस इज ट्रू फॉर डेवलपमेंट टू. डेवलपमेंट के लिए भी यही चीज़ है. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. अगर हम किसी भी देश को कंपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इफ वी आर कंपेयरिंग एनी नेशन, सो फॉर दैट द इनकम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ प्राइम फैक्टर to know that whether this country is developed or not developed. Countries with high income are those countries who have a high income are more developed than the less income. जिस कंट्रीज़ की लोगों की इनकम ज़्यादा होती है वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं उन कंट्रीज़ के कंपेरिजन में जहाँ इनकम कम होती है. This is based on the understanding that more income means more of all living things that human beings need. Simple example, if the person have a more income, so that his expenditure will and the quality of life will also be the good. किसी की इनकम ज़्यादा होगी तो उसके खर्चे भी ज़्यादा होंगे, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उसकी ज़्यादा इंप्रूव्ड और बढ़िया होगी स्टूडेंट्स, उसकी ज़रूरतें ज़्यादा जल्दी पूरी हो सकेंगी. वट एवर पीपल लाइक ऑल शुड हैव दे विल एबल टू गेट विद द ग्रेटर इनकम. कुछ भी करेंगे पीपल, जितने भी करेंगे, जितने भी पर्सन की ज़्यादा इनकम होगी तो जो भी जिस पर्सन की इनकम ज़्यादा होगी, दैट पर्सन हैव अ ग्रेट इनकम, सो दैट पर्सन हैव अ एबिलिटी टू परचेस वट एवर ही और शी वांट्स. जो भी वो चाहता है चाहती है वो खरीद सकता है ग्रेट इनकम से. सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल. तो ग्रेटर इनकम भी कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि हर एक पर्सन का एक इंपॉर्टेंट गोल होता है स्टूडेंट. नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री. अब देखते हैं कि कंट्री की क्या इनकम है, कैसे पता चलेगा. इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री. ये कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर देश की जो इनकम होती है वो हर एक देश का जो नागरिक होता है उस देश का, उसकी इनकम मानी जाती है. कैसे, दिस गिव्स ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. इससे पता चलता है हमारे कितना टोटल इनकम है. यहाँ पर एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है स्टूडेंट. देखिए, हाउ एवर फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर. कभी भी पूरे कंपैरिजन देखें कंट्रीज़ के बीच में तो टोटल इनकम एक यूजफुल मेजर नहीं है. मतलब कम देखें, क्योंकि मान के चलो इनकम ही देख लिया, फिर वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हो या फिर सोशल इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो तो इनकम का कोई फ़ायदा नहीं है. लेकिन एक कंपैरिजन दिया है, इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ रिलेटेड टू मनी, इट इज़ रिलेटेड टू सोशल आस्पेक्ट. तो यहाँ पर उस चीज़ से इसको लेकर समझा जा रहा है. सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, कुछ ऐसी कंट्रीज होती है जिनकी पॉपुलेशन डिफरेंट होती है, कंपेयरिंग टोटल इनकम इज नॉट एज वट एवरेज इनकम इज लाइकली टू वन. तो हर देश की अलग अलग पॉपुलेशन होती है तो वहाँ से हम कह सकते हैं एवरेज इनकम वेरी कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा देश है और वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, रशिया एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन रशिया की इनकम ज़्यादा है तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगी. आर पीपल इन अवर वन कंट्री बेटर देन अदर्स इन द डिफरेंट कंट्री. क्या होता है कि एक देश का जो आदमी है क्या दूसरे देश में कंपेयर टू द दूसरे देश के आदमी से अच्छा होता है. हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड इट्स पॉपुलेशन. तो हम क्या करते हैं, एवरेज इनकम फाइंड करते हैं. एवरेज इनकम की डेफिनेशन क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन. सिंपल स्टूडेंट, बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द एवरेज इनकम, यहीं पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. व्हाट इज एंकर इनकम, तो एवरेज इनकम इज द इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन एंड इट्स अनदर नेम इज ऑल्सो पर कैपिटा इनकम. इससे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दोनों का नाम एक ही है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे. इन
इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक दिस क्राइटेरियन यूज्ड टू क्लासिफाइंग कंट्रीज। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक हर साल निकालता है उससे पता चलता है कि क्या उसमें क्राइटेरियन है। तो कंट्री विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 पर एनम आर इन अबव इन 27 आर कॉल्ड रिच कंट्री। ऐसा देश जहाँ पर उस देश की जो पर कैपिटा इनकम है $12,056 पर एनम, सालाना इतनी इनकम हो 2017 में, तो उन देश के लोगों को हम रिच कंट्रीज माना गया। मतलब कि मान के चलो जितनी पॉपुलेशन है और जितनी टोटल इनकम उसको डिवाइड किया गया, और अगर $12,056 से ज़्यादा आ रही है तो आप मान के चलो कि वो कंट्री रिच है। एंड दोज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ 955 और लेस आर कॉल्ड द लो इनकम कंट्री। और ऐसी कंट्री जो कि $955 से के या फिर उससे कम आती है तो उनको लो इनकम कंट्रीज़ कहा जाता है, पुअर कंट्रीज़। इंडिया कम इन द कंट्री ऑफ लो मिडिल कंट्री। इंडिया क्या आता है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आता है, बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2017 वॉज 1820 पर एनम। इंडिया देखिए वर्ल्ड में जो रिच कंट्रीज़ है उनका कितना है 12,056, पुअर कंट्री कितना है 955, और यहाँ पे जो लोअर मिडिल में है 1820 पर एनम। तो इतना इंडिया के पर व्यक्ति की आय है। अभी इसको भी समझते हैं स्टूडेंट। अभी कई बच्चों के माइंड में आएगा कि सर फिर गरीब क्या होते हैं, तो उसमें देखो यही स्टूडेंट्स है कि बहुत अमीरों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और फिर उसको सभी पूरी टोटल पॉपुलेशन में जब हमने काउंट करा तो सबका जुड़ गया इनकम, फिर उसमें क्या करा पॉपुलेशन से डिवाइड करा गया तो सबका डिवाइड करने पर इतना आया है, टोटल इनकम वो है। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री। रिच कंट्रीज जो कि हम मिडिल ईस्ट के सऊदी अरेबिया इन सबको अगर एक्सक्लूड करते हैं तो बाकी जो भी कंट्रीज होती हैं उनको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। यहाँ पर इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एवरेज इनकम बताने के लिए एक वो दिया गया है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखिए। वाइल एवरेज आज यूजफुल कंपेयर दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज। कभी कभी कहते हैं एवरेज इनकम से पता तो चल जा रहा है कि देश की इनकम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिस्पैरिटीज भी कुछ छुपाता है। जैसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट एग्जाम्पल है। लेट अस कंसिडर टू कंट्रीज, दो कंट्रीज कंसिडर करते हैं ए एंड बी। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैव एज्यूम्ड दैट दे हैव ओनली 5 सिटीजन। समझने के लिए हमने माना कि दो देश हैं ए एंड बी, एंड उसमें मानते समझने के लिए कि उस देश ए में भी 5 लोग रहते हैं और बी में भी 5 लोग रहते हैं। तो यहाँ पे देखो डेटा दिया गया है कंट्री ए, यहाँ कंट्री ए एंड कंट्री बी। अब देखो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और यहाँ पे इनकम देखो रुपीज़ में 9,500, 10,500, 9,800, 10,000 एंड 10,200। अब देखो सबका जो टोटल होगा दैट इज़ द 50,000, सबका टोटल 50,000। अब उसको देखो 5 लोग हैं तो हमने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया स्टूडेंट, ये आ गया हमारा 10,000, आ जाएगा 10,000। अब देखो सेम वैसे ही दूसरे वाले में देखो 500, 500, 500, 500, 2,000 हो गया, 4 टाइम्स 500 है तो, एंड 48,000, ये भी 50,000 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो स्टूडेंट्स, ये भी 50,000, ये भी हमने 5 से डिवाइड करा था, ये भी 10,000 आ गया। लेकिन यहाँ पर देखो ऊपर देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, इनकी जो इनकम है वो कुछ की 4 डिजिट में है, कुछ की 5 डिजिट में है। लेकिन यहाँ पे देखो बी में 4 की 3 डिजिट में है और लास्ट वाले की सीधे 5 डिजिट में है। तो ये कहीं ना कहीं सोशल डिस्पैरिटी दिखा रहा है। मतलब कि यहाँ एक आदमी अमीर है और बाकी लोग गरीब हैं, और ए बी वाले में, और जबकि ए वाले में देखो कि सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप खुद सोचिए कि कंट्री ए अच्छा है या बी अच्छा है। तो सिंपल से दिख रहा है कि सबकी इनकम बराबर है और एवरेज इनकम भी ठीक है, तो कंट्री इज़ अ वेरी सूटेबल। और कंट्री बी में देखें तो बहुत गरीबी है और एक कोई अमीर है तो बहुत ज़्यादा अमीर है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो को हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स, एंड जल्द से जल्द मैं आप इस वीडियो की थर्ड पार्ट लाऊंगा। लास्ट पार्ट है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत शॉर्ट। अब यहाँ पर इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टूडेंट्स, तो इसको मैं 3 पार्ट्स में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप कम समय में इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। तो अगर कोई दिक्कत या कोई इशू, कोई प्रॉब्लम आए, कुछ डाउट्स हों तो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर आस्किंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।